بات ہے، ایران کی کسی بستی میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا، جبکہ چھوٹا بھائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال اور جائیداد کی فراوانی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس ایک خستہ حال مکان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی قناعت پسند تھا۔ وہ روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ امیر لوگوں کی طرح اس کے دل میں کوئی بھی خواہش نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے سکون اور صبر کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھائی کا نام بشیر تھا، جبکہ چھوٹے بھائی کا نام نذیر تھا۔ نذیر نیک دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کے گھر میں جو بھی آتا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتا۔ اس کے برعکس بڑا بھائی بشیر مالدار ہونے کے باوجود بہت کنجوس تھا۔ گھر میں آئے مہمان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے، اور غریب رشتہ داروں کا گھر میں آنا وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے مال کی وجہ سے اس کے گھر آتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کا بھی اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا، اور وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بستی میں ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے بشیر کا عالی شان گھر دیکھا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک کی آواز سن کر بشیر باہر آیا۔ وہ بزرگ بشیر سے کہنے لگا، بیٹا کیا تم مجھے ایک دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہو؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ بشیر نے جب بزرگ کی بات سنی تو وہ حقارت سے اسے کہنے لگا، اے بوڑھے شخص، تجھے یہ محل نما گھر سرائے لگتا ہے؟ میرے گھر میں تم جیسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بستی میں تمہارے جیسے اور بھی بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ تم کسی کے بھی گھر چلے جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو، وہ سامنے ایک گھر نظر آ رہا ہے، اس میں نذیر نامی ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہیں ضرور رکھ لے گا۔ بوڑھے کو معلوم ہو گیا کہ بشیر بہت کم ظرف انسان ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے دروازے سے چلا گیا اور سیدھا نذیر کے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو نذیر خوشگوار موڈ میں باہر آیا۔ نذیر بزرگ سے پوچھنے لگا، جی بابا جی کیسے آنا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بزرگ اگلی بات کرتا، نذیر نے بزرگ سے کہا، بابا جی آپ اندر ہی آ جائیں، باقی کی بات اندر بیٹھ کر لیتے ہیں۔ نذیر نے بزرگ کو اندر بٹھا لیا اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا۔ بزرگ نے پانی پیا اور بولا، بیٹا میں اس بستی میں کسی ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، کل صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ نذیر بزرگ کی بات سن کر ادب سے کہنے لگا، بابا جی آپ اسے اپنا گھر ہی سمجھیں، آپ یہاں جتنی دیر تک چاہے رہ سکتے ہیں۔ وہ بزرگ بہت خوش ہوا۔ شام کے وقت نذیر نے بزرگ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ تھا، جسے دیکھ کر بزرگ یہ سمجھ گیا کہ نذیر کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا دل بہت کشادہ ہے۔ بزرگ کو اس کی مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ بزرگ نے وہ روٹی خوش ہو کر کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بزرگ نذیر سے کہنے لگا، بیٹا میں جس کام کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس میں شامل کر لوں تاکہ تمہارے حالات تھوڑے بدل جائیں۔ جس پر نذیر کہنے لگا، بابا جی میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ مجھے کس کام میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگ دھیمی سی آواز میں کہنے لگا، بیٹا آج سے 40 سال پہلے میں اسی بستی میں رہا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، میرے پاس بہت سارا سونا اور اشرفیاں موجود تھی۔ مجھے کسی ضروری کام سے یہاں سے دور ایک بستی میں جانا تھا۔ میں اس وقت گھر میں اکیلا تھا، لیکن اتنا بڑا خزانہ گھر میں چھوڑ کر سفر پر نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے لیے وہ کام بھی بہت ضروری تھا اور مجھے چوروں کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس خزانے کو پاس کے جنگل میں دفن کر دوں۔ مجھے یہی بہتر لگا۔ میں نے اپنا خزانہ لیا اور جنگل میں پہنچ کر ایک برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا اور گھر سے اپنا ضروری سامان لے کر دوسری بستی کو نکل گیا۔ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، ہاں البتہ سونے کی ایک اینٹ موجود تھی جسے میں سونار کی دکان پر بیچ کر رقم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان پیسوں کو ضرورت کے کاموں میں لگا سکوں۔ میں بستی میں ایک سونار کی دکان پر پہنچا اور اسے اپنی سونے کی اینٹ دکھائی۔ خالص سونے کی اینٹ دے کر سونار کے دل میں لالچ آ گیا اور بجائے مجھے اس اینٹ کے بدلے پیسے دینے کے، اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔
और ना करदा जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने 40 साल जिंदान में गुजारे और अब अपनी सजा पूरी काट कर वापस इस बस्ती में आया हूँ। अब मैं अपने इस खजाने को निकालना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस खजाने के निकालने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दूंगा। नज़ीर बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मदद करने पर राजी हो गया। बुजुर्ग ने यह रात नज़ीर के घर पर गुजारी और सुबह सूरज निकलने से पहले लोगों की नजरों से बचते बचाते वो जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर बुजुर्ग ने नक्शा निकाला और जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो निशानदेही उसने नक्शे पर की थी उसके मुताबिक जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वो एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो नज़ीर से कहने लगा, यही वो दरख्त है जिसके नीचे मैंने खजाना छुपाया था। तुम यहाँ से 2 हाथ खुदाई करो। नज़ीर ने खुदाई के लिए औजार निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे वो संदूक नजर आया। उसने अपना औजार साइड पर रखा और संदूक बाहर निकाल कर बुजुर्ग के हवाले कर दिया। फिर वो दोनों संदूक लेकर घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने वो संदूक खोला तो वो सोने की ईंटों और चरखियों से भरा हुआ था, जिसे देखकर नज़ीर हैरान रह गया। इसके बाद बुजुर्ग ने आधा सोना नज़ीर को दे दिया और आधा सोना संदूक में रहने दिया। बुजुर्ग नज़ीर से कहने लगा, बेटा इस सोने को एहतियात से इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी तरह फंस जाओ। मेरे पास तो महज एक सोने की ईंट थी। देखकर वो सुनार लालच में आ गया और मुझे फंसा दिया। तुम्हारे पास इस वक्त काफ़ी खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बच कर रहना। नज़ीर को नसीहत करने के बाद बुजुर्ग ने अपना संदूक कपड़े के एक झोले में डाला और कहने लगा, ये खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। मैं ये खजाना गरीबों में तकसीम कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक और जगह पर मैंने खजाना छुपा रखा है। मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा और उसका क्या करना है तभी तुम्हें बताऊँगा। ये बात नज़ीर की बीवी भी सुन रही थी। नज़ीर ने बुजुर्ग को घर के दरवाजे तक छोड़ा और कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। उसकी बीवी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर खुश होकर कहने लगी, इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। नज़ीर ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नज़ीर के हालात बदलने लगे। उसने सबसे पहले पुराने घर की जगह पर एक बहुत बड़ा नया घर तमीर किया। उसके घर में ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। इतना अमीर होने के बावजूद उसमें ज़रा भी अकड़ नहीं आई। उसके घर में जो भी मेहमान आता वो उसकी पहले से बढ़कर आवभगत करता और उनकी खूब मदद भी करता। बस्ती के गरीब लोग उसकी पहले से भी ज़्यादा इज्जत करने लगे। उसके अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई बशीर को लगी तो वो अपनी बीवी को लेकर उसके घर पहुंच गया और बड़ी हैरानगी से देखने लगा और पूछने लगा कि उसका भाई इतना अमीर कैसे हो गया है। नज़ीर चुप रहा और इतना ही कहा कि बस अल्लाह की मेहरबानी है। नज़ीर और बशीर की बीवियाँ एक दूसरे से हसद करती थी। बशीर की बीवी नज़ीर की बीवी से जल कर बोली, तुम लोग जितने भी अमीर हो जाओ हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसके मुंह से निकल गया, हमारे पास अभी और भी खजाना है जिसे निकाल कर हम तुमसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। बशीर की बीवी बहुत मक्कार औरत थी। घर वापस जाकर वो अपने शोहर से कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा भाई कैसे अमीर हुआ है। उसने जंगल से कोई खजाना निकाला है और जंगल में अभी भी और भी खजाना दफन है जिसे निकाल कर वो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बस्ती में कोई हमसे ज़्यादा अमीर हो। आप किसी तरीके से जंगल से वो खजाना ढूंढने की कोशिश करें ताकि मैं नज़ीर की बीवी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। बशीर अपनी बीवी से कहने लगा, इतने बड़े जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग जिसे हमने घर से निकाला था ज़रूर उसी ने ही नज़ीर को उस खजाने के राज के बारे में बताया होगा। वो बुजुर्ग इससे पहले कभी भी बस्ती में नजर नहीं आया और उसके यहाँ से जाने के फौरन बाद ही नज़ीर मालदार हो गया है। बशीर भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे ज़्यादा अमीर हो जाए। उसने भी वो खजाना तलाश करने का फैसला कर लिया जो उसका था ही नहीं। उसे ये परवाह नहीं थी कि ये चोरी के जुमरे में आएगा। उसके जहन पर महज खजाने का लालच सवार था। अब वो हर लम्हा अपने भाई नज़ीर की जासूसी करने लगा। कुछ दिन के बाद वही बुजुर्ग वापस उसी बस्ती में आया तो बशीर ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब बशीर उस बुजुर्ग की सारी नकलो हरकत पर नजर रखने लगा। वो बुजुर्ग सीधा नज़ीर के घर के दरवाजे पर पहुंचा
और नज़ीर का बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने नज़ीर के दरवाजे पर दस्तक दी। नज़ीर फौरन बाहर आया और उस बुजुर्ग को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नज़ीर ने बुजुर्ग से अंदर आने को कहा, लेकिन बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नज़ीर उस बुजुर्ग के साथ चल दिया। वह जंगल की तरफ चलने लगे। बशीर उनका पीछा कर रहा था। बुजुर्ग नज़ीर से कहने लगा, बेटा हो सकता है मैं कुछ अर्सा इस बस्ती में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दूसरे खजाने का राज बताकर जा रहा हूँ जो इस जंगल में एक दूसरी जगह पर दफन है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास महफूज कर लेना, फिर मैं वापस आकर बताऊंगा कि इस खजाने का क्या करना है। बुजुर्ग ने नज़ीर को खजाने की जगह की निशानदही करवाई। बशीर ये सारा मंतर देख रहा था। उसने भी उस जगह को ज़हन नशीन कर लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे खजाने का राज मिल गया है, अब बहुत जल्द मैं उसे वहां से निकाल लूंगा। बशीर की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे मालदार घर हमारा ही होगा। बशीर की बीवी बेवकूफ़ थी। इसी गुरूर में वो नज़ीर के घर गई और उसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज़्यादा अमीर हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे शोहर को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है जिसे निकाल कर हम तुम लोगों से एक दफ़ा फिर आगे निकल जाएंगे। वो अपनी जली कटी बातें सुनाकर वहां से चली गई। नज़ीर जब जंगल से घर वापस लौटा तो उसकी बीवी उससे कहने लगी, बशीर की बीवी कह रही थी कि उसके शौहर को भी जंगल में किसी खजाने की जगह मालूम हो चुकी है। जिस पर नज़ीर कहने लगा, उसको जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला। नज़ीर की बीवी को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और कहने लगी, पिछली दफ़ा जब आपके भाई और बापी हमारे घर आए थे तो आपकी बापी मुझे दीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। जिस पर नज़ीर कहने लगा, बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात ना करना। मुझे लगता है मेरे भाई ने बुजुर्ग के साथ मुझे जंगल में जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि मेरा भाई वहाँ से वो खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही उस खजाने को महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रखना। नज़ीर रातों रात जंगल में गया और खजाना वहां से निकाल कर घर में लाकर महफूज कर लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले बशीर उठा और जंगल में पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि लगता है कि उसका भाई बहुत चालाक निकला है, शायद उसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले ही खजाना लेकर यहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ बशीर की बीवी घर पर अकेली थी। उसके घर में चोर दाखिल हो गए और घर से सारा कीमती सामान और मालो दौलत लेकर वहां से फरार हो गए। बशीर जब घर वापस पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी बीवी उससे भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर पूछने लगे। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। बशीर अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयाँ उड़ रही हैं? बशीर की बीवी कहने लगी, आपके जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। आप बताएं, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है? उस पर बशीर ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, खजाना वहां पर मौजूद नहीं था। शायद मेरे भाई ने वहां से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्करों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी ही नहीं, और उसको हासिल करने के चक्करों में हम अपने हमाल से भी हाथ धो बैठे हैं। ना तुम हसद करती और ना हम यहाँ तक पहुँचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दोबारा नज़ीर के घर आया। नज़ीर ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और उसे उसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना नज़ीर को दे दिया और उसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूँगा? नज़ीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी ना जाएं और आप इधर मेरे पास ही रहें। बुजुर्ग ने नज़ीर की बात मान ली। नज़ीर ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर आए मेहमान की हमें इज्जत करनी चाहिए,
کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہمان کی خدمت کرنے کے بدلے انسان کو بہت نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لالچ میں آ کر کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کی ہوس اور لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لالچی انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس مال کو پانے کی وہ کوشش کر رہا ہے اسے پانے کی کوشش میں وہ اپنا مال بھی کھو دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے دیے پر خوش رہیں، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں، دوسروں سے حسد نہ کریں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی عزت کریں، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔